बचपन में व्हेनेवर द टीचर यूज्ड टू आस्क कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने हमेशा सुना क्लास में लोग बोलते थे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आर्मी, पुलिस. आई नेवर हर्ड प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन. The very first learning I came to know that humble होना और पावरफुल होना दोनों एक साथ पॉसिबल है. बट उस टाइम भी म्यूचुअल ट्रस्ट और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, ये चीज़ें बहुत डोमिनेंट थी और वो आज भी हैं. पर एक बात समझ में आई कि what looks good on paper may not be necessarily good on actual ground really. तो ये बात हमको बहुत अर्ली ये जब समझ में आई कि अगर आपने शॉप फ्लोर पे जाके एक्सपीरियंस नहीं लिया है, सो आपका जो लर्निंग है वो अधूरा है. एक्सपीरियंस में नॉट ऑलवेज बीट AI, बट AI विदाउट एक्सपीरियंस कैन बी डेंजरस. तो इंडिया में जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ट्रांसपोर्टर का एक रेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कभी बन भी सकता है? जब आप किसी ट्रांसपोर्टर को रेट करते हैं तो ट्रांसपोर्टर भी आपको रेट करता है. Hello, Namaskar. Welcome to this podcast where we try to bring in the unchained insights from the industry experts. And today I am more than happy to welcome someone very important. Amit, I welcome you to the podcast. And before I ask you to give an introduction, I just wanted to share that whenever बचपन में whenever the teacher used to ask कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने हमेशा सुना क्लास में लोग बोलते थे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आर्मी, पुलिस. आई नेवर हर्ड प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन. सो दैट इज़ वेयर आई वांटेड टू स्टार्ट, एंड आई वांटेड टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ इंट्रोड्यूस and say how the journey started, and that is where we start, and then we'll dive further into it. Thank you very much, Nitish, and it's an absolute honor for me, and thank you for having me. So as you know, my journey is very interesting basically, and I was aspirant of a civil services actually. So I prepared a lot for that, but I couldn't get a desired role in that. So then somewhere I shifted myself to this procurement and logistics space. So I started my journey early 2020, and it's almost 26 years for me to associated with Bridgestone. So I was a part of procurement team in my early days, and procurement is a very, very important space, and I learned sourcing, negotiation skills, vendor management, risk management. Lot of aspect I learned at procurement. So in 2015 I got the opportunity to work for logistics and supply chain space, and I shifted myself to logistics space. So then I got a different perspective of a business. Procurement में मैंने देखा कि commercial aspect और vendor management कैसे किया जाता है. Logistics is a real heartbeat of a business. वो वहाँ पे मैंने जाना logistics में, और धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ आती गई और मैं ग्रैब करता गया. So my total journey is not an achievement of a single milestone, बल्कि ये जो गलतियों से सीखना, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना और कैसे नए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, इसका समेशन है. एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है निदा फाजली की कि ज़िंदगी में धूप तो होगी, अगर चल सको तो निकल लो. तो अपन निकल लिया. बढ़िया है सर. That's the spirit. In fact, logistics, we all say that logistics is a story, and there is a story in logistics always. 26 years here, first of all, as in kudos to you in terms of having such a diverse experience across core manufacturing, and we'll go into that कि तब टेक्नोलॉजी का क्या था और आज क्या है. मैं शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ जानना चाहता था कि ऐसा क्या वाकया है, ऐसा क्या पास्ट में कोई एक ऐसी एनेक्डोटल स्टोरी है जिससे आपको बहुत ही अर्ली स्टेजेस में लर्न करने को मिला, और एक ऐसी चीज़ जिसको आप आज भी याद करते हैं तो एटलीस्ट ऐसा चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए from back in the day. So it would be great to know, sir. Sure. So in my span of 26 years, there are a lot of stories associated with me. But in my early days, I could remember a story. मैंने नया प्रोक्योरमेंट ज्वाइन किया था और कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटी में देखता था. तो somehow I got the opportunity to attend a customs hearing with Commissioner of Customs. तो me and my director was scheduled to have a customs hearing at JNPT मुंबई. हम गए, पर अचानक ऑन द डे ऑफ हियरिंग मैं ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी
my director has to cut the visit. Oh. So I was all alone. अब पता नहीं, but you have to attend, you have to run the show. Like मेले में छोटे बच्चे का हाथ छूट गया हो. Absolutely. So उसके बाद with all my nervousness and all my things in mind, I went ahead and I attended the hearing. So बहुत as usual customs काफ़ी वेट कराते हैं. So of course वो बड़ी अथॉरिटी भी थे. So बहुत इंतज़ार के बाद मेरा नंबर कॉल किया गया, मैं आया. So मैंने देखा जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बाहर ही रह गया था. So I entered the room without any confidence. The very first thing I did is take a permission to sit and then I grab a glass of water और पूरा एक झटके में ही पूरा पानी पी गया. वहाँ पे मुझे लगा कि कमिश्नर ऑफ कस्टम्स जो कि बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, तो उन्होंने बहुत जल्दी मुझे भांप लिया कि ही इज़ अ न्यू कमर और ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. तो उन्होंने पहले तो आराम से बिठाया, मुझसे पहले कंफर्टेबल किया मुझे और मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ दिया. उन्होंने मुझसे मेरा केस पूछा और ही सपोर्टेड मी ड्यूरिंग द डिस्कशन. सो यूजुअल हेयरिंग से इट टुक 3 times मोर टाइम फॉर दिस हेयरिंग, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी ईज़ किया. और उसके बाद उन्होंने केस को समझा और उन्होंने बोला कि ओके नाउ यू गो अहेड. तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी. सबसे पहले द वेरी फर्स्ट लर्निंग आई केम टू नो दैट हम्बल होना और पावरफुल होना दोनों एक साथ पॉसिबल है. और कई बार अथॉरिटी का यूज़ हमने देखा है इतने बड़े स्पैन में कि लोग डोमिनेंस के लिए यूज़ करते हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं अपनी अथॉरिटी. पर अच्छे तरह से अथॉरिटी यूज़ की जाती है न्यू कमर को कंफर्ट देने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए. एंड दिस इज़ द रियल लीडरशिप स्किल आई कुड से. सो ये मैंने चीज़ वहाँ से सीखी. तो आज भी मुझे वाक़या थोड़ा थोड़ा याद है, पर उनका जो बिहेवियर है मुझे ताउम्र याद रहेगा. ये बहुत अच्छा मेरे लिए लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ के गया था. Very nice, sir. So the humility probably stays for a longer time compared to power for sure, because उनकी कुर्सी तो चली गई, हमको नाम तो याद नहीं है हमको, तो हमें पता नहीं, but his position would have moved on. But why you remember him is for humility, which is there, which is very important in our daily lives also. एंड आपने बोला कि मैं कॉन्फिडेंस बाहर छूट गया, और मुझे लगता है कि द वेरी इनिशिएटिव कि आपने रूम के अंदर गए तो कॉन्फिडेंस बाहर नहीं छूटा, कॉन्फिडेंस गया आपके साथ ही. एक्चुअली आपने छोड़ने की कोशिश की पर वो छूटा नहीं पीछे. एक्चुअली जब सर आपने शुरू किया, मतलब जिस टाइम पे व्हेन यू स्टार्टेड, एंड इट इज़ वे बैक, आई थिंक 25-26 years बैक, आई थिंक वी कांट इमेजिन हाउ द वर्ल्ड एंड द मैन्युफैक्चरिंग और द थिंग्स वुड बी लुकिंग लाइक. When you used to go daily to the office from a procurement, logistics, supply chain perspective, तो दिन कैसा रहता था, मतलब how it used to be like, as in where do you used to start daily? क्या जैसे आजकल तो हम फ़ोन से परेशान रहते हैं, तो तब किससे परेशान रहते थे? आजकल तो डे स्टार्ट में था व्हाट्सअप. आप उठते हो, व्हाट्सअप देखते हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ रात भर. WhatsApp is like the oxygen now, sir. Oxygen now. So those early days, pen, diary and landline was our main tool. ऐसा टिपिकल डे स्टार्ट होता था. देयर वाज नो डैशबोर्ड, नो व्हाट्सअप, नो रियल टाइम विजिबिलिटी, GPS विजिबिलिटी. यू डिडंट नो कि क्या हुआ है आगे जाके, वो आपको बाद में पता लगता था. सो योर डे स्टार्ट विद अ पेन एंड अ डायरी, और दिन भर की मीटिंग के नोट्स आपकी डायरी में स्टोर किए जाते थे और लोगों को मैनुअली मिलते थे. जैसा आज हम देखते हैं कि बहुत ईजी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, उस टाइम ये सारी चीज़ें बिल्कुल दूर थी. और लैंडलाइन, सिंस लैंडलाइन वाज अवर मेन टूल, लैंडलाइन डेड हो गया तो आप क्या करोगे, तो सीधा आप वेंडर के ऑफिस पहुंच जाओ. दैट वाज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. उससे बात करना तो कि कहाँ पे है क्या है, और सिचुएशन का एक्चुअल पता करने के लिए आपको यू नीड टू कॉल ईच अदर. और उस टाइम के रिलेशनशिप जो होते थे वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन और म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पे होता था. आज जो है वो सिस्टम ड्रिवन ज़्यादा हैं और KPI है, डैशबोर्ड है, लोग सिस्टम्स की बातें आज ज़्यादा करते हैं. So that was a quite different phase as compared to today. But sir, we'll come to it very interesting point in terms of कि आज हम systems की और process की बातें ज़्यादा करते हैं. But मुझे अभी भी ऐसा, it's my view that the importance of relationship and mutual trust is actually have it at its peak according to me, because systems and process hygiene हो गया है sir अभी actually. So that is where sir I actually one of the things which keep on coming, मतलब जब हम भी बात करते हैं whenever we get into this domain, कि there are a lot of things which are systems, processes and documents which we talk about, but हम
हम दोनों जानते हैं, हम एटलीस्ट मेरे से बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है, जो सिस्टम्स में लिखा गया है, ग्राउंड जो है वो कई बार इट डजेंट वर्क दैट वे, बिकॉज लॉजिस्टिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड मोर देन व्हाट्स हैपनिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड एक्चुअली. And at no point in time we can say कि it is even closer to the digital replica what is happening in the logistics space. So I wanted to know your perspective, sir, that what was those couple of things जिनसे आपको ये समझ में आया कि documentation systems and process और ground, ये दो चीज़ें जो हैं ये इन दोनों में फ़र्क है. और क्योंकि मैं जानता हूँ कि विद दिस विजडम ओनली यू वर एबल टू डेवलप द सिस्टम्स विच वर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वन ऑफ द बेस्ट यूज सिस्टम्स इन इंडस्ट्री व्हाट वी नो. So if you can share कि how you get to learn about this personally, sir. So I'll refer example. एक there was a very important dispatch plan was there. It was a month end day and everything was set. पूरा प्रोसेस सेट हुआ था और एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट ऑन द डॉक्यूमेंट. प्रोसेस SOP सारा कुछ सेट था. बस गाड़ी आने वाली थी और मटेरियल लोड होके जाना था, इनवॉइस होके. दैट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग विच यूज टू हैपन. हम सब अपने घर में आराम कर रहे थे और उस टाइम तो मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं था, तो वी डिडंट हैव अ मोबाइल इवन दोज डेज. सो क्या हुआ कि डे एंड आपका 12 बजे रात में होना था. 12 बजे के पहले सारा कुछ प्रोसेस होना था. सो यू नो व्हाट हैपेंड, द व्हीकल केम क्वाइट लेट और वो छोटी थी. जो एस्टिमेटेड व्हीकल का साइज़ था उससे छोटी गाड़ी आ गई थी. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, पर वो ऐसा हो जाता है लॉजिस्टिक्स में. तो अब आपको बिजनेस फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, उसको तुरंत फुलफिल करने की बजाय प्रोसेस फॉलो करने के कि करें तो क्या कर रहे हैं अभी. सो इमीडिएटली हमने मैटर को एस्केलेट किया, ऑल्टरनेट बैकअप अरेंज किए और बहुत सारी चीज़ें की तुरंत. वहाँ पे हमने लोडिंग टीम से बात की फटाफट उसको लोडिंग करने के लिए और फाइनली सिचुएशन मैनेज हुई. पर एक बात समझ में आई कि what looks good on paper may not be necessarily good on actual ground reality. So ये बात हमको बहुत अर्ली ये जब समझ में आई कि अगर आपने शॉप फ्लोर पे जाके एक्सपीरियंस नहीं लिया है सो आपका जो लर्निंग है वो अधूरा है, बिकॉज आपको वहीं से प्रॉपर सिचुएशन को हैंडल करने की सीख मिलती है. सो सर, लॉट ऑफ सिस्टम्स, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर कमिंग अप. काफ़ी कुछ बन रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे जाने का जो सर एक टेंडेंसी था, एक जो अप्रोच था, आपको क्या लगता है सर वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, कम हो गया है पहले के टाइम से, या आज ऐसा हो गया है कि हम डेस्क पे बैठ के कंप्यूटर्स पे ज़्यादा काम करने में बिलीव कर रहे हैं और ग्राउंड पे कम जा रहे हैं? इसी से रिलेटेड सर, उसी का एक्सटेंशन मैं जानना चाहता था कि हाउ डू यू फील दैट हैव वी गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इवेंचुअली, और we are more connected to the ground, or is there a balance which is still there between ground and systems which are? I should say कि balance तो है, but it is more towards inclination towards office culture, office work. Ground पे लोग अभी कम जाना चाहते हैं, AC ऑफिस में बैठते हैं. So when you go to the ground reality, तो आपको जो एक्सेल शीट, आपको जो परफॉर्मेंस और रिपोर्ट जो बताती है, आपको ग्राउंड पे जाने में ये पता लगता है कि उसमें कितने एफर्ट डाले गए हैं, हाउ डिसिप्लिन इट वाज, और किस तरह से वो चीज़ें करी गई हैं जिस वजह से ये रिज़ल्ट आया है. देन यू वुड बी एबल टू लर्न द एक्चुअल थिंग. अभी मैंने देखा है कि ऑफिस कल्चर, जैसे जो नए जनरेशन आते हैं, बढ़िया बी स्कूल से आप बढ़िया पढ़ के आते हो, तो आपको ग्राउंड पे जाके काम करना चाहते नहीं है, समझना भी नहीं चाहते, बट दैट इज़ अ मिसिंग लिंक एक्चुअली. वो आपको ज़रूर करना चाहिए, वो मैंने देखा है. और इन आवर टीम वी प्रमोट, जब वो आदमी नया ज्वाइन करता है तो वी आस्क देम टू एटलीस्ट स्पेंड 2 months एट फिनिश गुड वेयर हाउस एंड लर्न द थिंग्स ओवर देयर, देन यू कम टू ऑफिस. सो वो उसके लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं. तो 100% लोगों का ये फीडबैक आता है कि सर वहाँ पे जो हमने सीखा है और अब जो हम ऑफिस में आके काम कर रहे हैं, सो नाउ इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर वाइब्स, स्ट्रॉन्गर थिंग्स टू हैंडल नाउ, जो हमने ग्राउंड पे जाके सीखा है. एंड सर, डू यू फील कि एम्पैथी भी थोड़ा बढ़ता है? बिकॉज क्या होता है सर, कई बार हम जैसे जो सर लोड कर रहा होता है सर, एज इन मेरी लाइफ में सर, व्हेन आई वेंट लॉट ऑफ क्लोज इंडस्ट्री, जहाँ पे देखा कि इट इज़ ट्रक का टैट बोलते हैं सर, ट्रक टर्नअराउंड टाइम, वो यहाँ पे बैठ के मेजर करना और डेस्कटॉप पे देखना, वर्सेस वहाँ पे जो एक वर्कफोर्स जो उसको लोड कर रहा होता है ट्रक में जिस टाइम पे,
वो कहाँ से उठाता है, कैसे रोल करता है, क्या करता है. सो वो कई बार एम्पैथी भी मैंने देखा सर कि इट इज़ मिसिंग बिटवीन दी इट्स टू वर्ल्ड एक्चुअली. So a physical world where people are suffering because of small little things that okay I need so many scans because we have not deployed the right sequence of technology, for example, or we have not given the right let's say tools and tackles to handle it actually. And the ground people keep suffering, and the empathy to the decision makers is sometimes lower, sir. I don't know, this is my experience, sir, No, but no, you are absolutely correct. Empathy, judgment और personal टच आज भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फैक्टर होता है. correct. किसी बिजनेस को रन करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम एआई एंड टेक्नोलॉजी. और ये चीज़ आपको शॉप फ्लोर से ही आ सकती है. व्हेन यू सी द पीपल हाउ दे आर वर्किंग, then you would be able to take a better judgment of the things rather than demanding the things blindly. तो वो डेफिनेटली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि सर रिलेशनशिप जो है, हम बात करते हैं रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये कैसे, हाउ इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम लेट्स से 2.5 decades बैक व्हेन यू स्टार्टेड और इन योर जर्नी till now. So ये कैसे करते हैं सर? How do you intuitively do it? I mean, is it a wisdom which is carried from a long time? So what goes inside the mind? What processes, sir? And how the relationship perspective has evolved in these time actually, sir, when we are in today here. या सो जैसा हमने अभी बात किया कि आज भी बिजनेस में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पर्सनल टच और एम्पैथी इट मैटर्स मोस्ट. तो ये रिलेशनशिप का एक बेसिक नींव है जिसको सबको रखना चाहिए. और ये डेवलप होता है वर्कशॉप फ्लोर पे जाके ही होता है जब आप टीम को देखते हो. सो पुराने दिनों में जो अपने रिलेशनशिप थे तो वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे रहते थे, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन पे रहते थे, एंड कमिटमेंट वर ऑफन ऑनर्ड बेसिस ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट वी डू हैव. अभी तो आज सिस्टम है, केपीआई है, सिस्टम्स बात करते हैं एक दूसरे से, लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है सालों से. सो दैट मेक्स अ डिफरेंस. वो आपको वो रिजल्ट नहीं दे सकता जब तक आप ये ह्यूमन टच लेके नहीं आओगे. So that's what I want to say कि human touch is most important thing. Still it has a lot of relevance in this world. और सर टेक्नोलॉजी में जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंड हियर इज व्हाट आई वांटेड टू एटलीस्ट कोट माय एनेक्डोट इज दैट इट वाज जस्ट आइडिया, इट वाज जस्ट अ सीड एक्चुअली विथ विच वी एटलीस्ट आई केम, एंड आई कांट से वी क्योंकि उस टाइम वी कुछ था नहीं एक्चुअली. सो एटलीस्ट आई केम टू यू and I got a very mutual reciprocating feeling that there is something which can be tried, there is something which can be looked upon, there is something which can be experimented with. And that confidence जो था सर आपका, that was contagious actually, as in for me also as a person I can vouch for it that it was contagious in terms of as we say breakthrough. So getting a breakthrough to someone who's not having a product but just having an idea. So I would like to know, now we have passed that, so I would like to know what went into your mind, how you took that decision that you would like to take such a big risk where you have already a well established process with such a large portfolio in your under you. Sure. So as I stated कि I am from that era कि जहाँ पे हम we believe in meeting people, we believe in putting a trust upon other people, and we believe in listening to others. So वो हमारी प्रैक्टिस थी. तो जब आप लोग आए थे तो I see a lot of conviction in your talk. You were offering a product which was new to us, और somehow हमको लगा कि ये ट्राई करना चाहिए, और वी ट्राई टू बिलीव इन यू. और बस वही एक फैक्टर था जहाँ से ये चीज़ ट्रिगर हुई, एंड देन वी म्यूचुअली डिड अ वेरी बिग थिंग इन लेटर ऑन. तो बस वही एक ट्रिगर पॉइंट था कि वी बिलीव इन यू. द वे यू एक्सप्लेन द थिंग्स टू अस वॉज क्वाइट पावरफुल, और आई शुड से क्वाइट टचिंग फॉर अस, और हमको वो बहुत इम्प्रेसिव लगा था ओवरऑल सिचुएशन. Right, so that is where I say that logisticians have a very built-in intuition which is there, and intuition is something which is a key. So my intent was to just understand that intuition, which was very very important when you started, and again in your journey. So आज से 20-25 साल पहले sir, I'm sure we required minimal software systems, and correct me sir if I'm wrong, but we required minimal software systems, minimal technology interventions, which is there. So sir, how
the evolution of the supply chain or network over last 2.5 decades in your experience, what has changed, as in what fundamentally has changed, why the networks as today, they were same in 2 decades back, or they have evolved? If they have evolved, sir, what is the complexity of seen evolving, and why we are seeing so much of technology, data, and digitalization now becoming the mainstream which is there, sir? So I wanted to understand from a perspective that how the evolution of this has happened actually. Sure. So during my early days, what I feel that in that era, actually, your network usually relatively simple था. अच्छा, और तो सिंपल नेटवर्क से मतलब कैसा है, मतलब या सो ज्योग्राफिकल स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं था. ओके, यू हैव अ लिमिटेड ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स एसोसिएटेड विथ यू. वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते थे. जो लोकल ट्रांसपोर्टर होता था बहुत कुछ वो ही कवर कर लेता था. आपका जो वेयर हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स होती थी वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी. So now the things has changed as the business grow. So things have changed. Now you need a regional distribution strategy. You need a specialized transporter partner for a different sector. You need a specialist in the sectors. और आपके जो वेयर हाउसेज होते हैं वो भी आपको मल्टी डायमेंशनल फ्लो के साथ चाहिए होता है. सो ये जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ है इसकी नीड बढ़ती गई है. एंड यू नाउ हैव अ लार्ज पूल ऑफ transporter, and now you learn that how the opportunity comes from the market and you have to grab it. So इस तरह से चीज़ें बदलती गई और काम का तरीका बदलता गया और इस तरह से आपकी पार्टनरशिप लोगों के साथ बदलती चली गई. एंड देन टेक्नोलॉजी प्लेज अ लार्जर रोल इन दैट. एंड नाउ AI भी अब आ ही गया है. सो AI इज प्लेइंग अ मेजर रोल. फ्यूचर इज AI. सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैव. एंड सर इसको थोड़ा और अच्छे अगर हम समझना चाहें सर, तो जैसे लेट्स से वी टॉक अबाउट 20 years बैक फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे सर लेट्स से अगर कोई कस्टमर ऑर्डर देता था, फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर देता था या डीलर ऑर्डर देता था, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती थी कि मटेरियल कब तक पहुंच जाए, और आज वो कैसा है सर, वो ज़रा अगर इफ़ यू कैन गेट Yes, सम yes, सम इनसाइट देयर सर, इट वुड बी ग्रेट. yeah. So very relevant question, very good question brother. So जब हम पुराने ज़माने में आपको देते थे ऑर्डर, OEM भी बहुत मार्जिन रखते थे. आज तो OEM जस्ट इन टाइम की बात करते हैं. राइट, तो उस टाइम बहुत मार्जिन होता था. लोगों को एक अंदाज़ा बस देते थे कि 10 दिन में 12 दिन में मटेरियल पहुंचेगा. अब वो 10 दिन का 20 दिन भी हो जाता था तो भी इतना पैनिक नहीं होता था, या 6 दिन भी हो जाता था तो भी वो सिचुएशन हैंडल होते थे. आज तो रियल टाइम विजिबिलिटी है. अमेज़ॉन ने जो चीज़ बढ़ा दी है कि आपका पैकेज कहाँ पहुँचा है, कब मिलेगा, घर में आप हो कि नहीं रिसीव करने के लिए. सो दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व नाउ. सो इस तरह का एक्सपेक्टेशन कस्टमर का बढ़ गया. हर पल हर समय की उनको रियल टाइम विजिबिलिटी चाहिए, और जो कि आज इंडस्ट्री उनको दे रही है. सो दैट्स हाउ द थिंग्स हैव प्लान नाउ. इन्वेंट्री उस हिसाब से प्लान होती है. आपका बिजनेस मॉडल उस तरह से रन करता है. सो जितने भी OEMs हैं लार्जली उनका सप्लाई चेन इज़ अ हार्ट बीट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो उनका सप्लाई चेन ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बी इट एशियन पेंट्स और एनी बिग OEM. सो सप्लाई चेन पे ही उनका पूरा थ्रस्ट है. सप्लाई चेन ड्राइव्स द कंपनी बेसिकली. सो ये जो रियल टाइम विजिबिलिटी है, जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, हम जानते हैं कि किस तरह का उनका प्रेशर रहता है टू मीट द रिक्वायरमेंट. पर तो सर आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे B2B में स्पेशली, जहाँ पे हम जिस इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे हम OEMs को दे रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हैं जैसे, तो वहाँ पे भी अब अमेजॉन इफेक्ट, मतलब अपना सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी. आपको लगता है सर एक दिन हम वापस जेप्टो वाले दुनिया में पहुँचने वाले हैं कि यहाँ पे भी कि हमको 10 मिनट में टायर चाहिए अभी? एब्सोल्युटली. कोविड टाइम में हमने एक्सपेरिमेंट किया भी था. अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं किया. सो ई-कॉमर्स के थ्रू हम वी ट्राई टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट. और ऐसा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि उन्होंने जिस तरह से जेप्टो में आज ब्रेड और बटर ऑर्डर करते हैं कि टायर आ जाए, टायर फिट हो जाए, फिट भी हो जाए, फिट भी हो जाए, या उनको तो फुल स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए उनको. राइट. सो दैट्स व्हाट इज कस्टमर डिमांडिंग दीस डेज. Given the era, sir, where we started off with relationship trust, then the complexity of the networks because of the geographical expansions, our expectation on supply chain efficiency, and then moving on to era where Amazon effect started to kick in, that we want अभी तो मेरे को 300 रुपये का, 100 रुपये का सूप या पिज़्ज़ा भी मेरे को देखना है कि कहाँ पे पहुँचा है. सो दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन एज इट इवॉल्व्स,
And the leadership transitions, sir, when we look at these two things, actually, leadership in supply chain and logistics, what do you think, sir, is something which a leader or someone who aspire to be a leader into supply chain and logistics can learn from this evolving complexity and our own ecosystem? As I said, that as you very rightly said, the freshers को तो जाना चाहिए shop floor पे और warehouse में और dock पे देखने के लिए. But how do you think the learning of leaders, or if I am aspiring to be a leader, what are few things which we can learn only by looking at the ground closely, correlating it with the complexity we spoke about, how it is evolving, and then probably come to a conclusion or initiatives जो हम लेते हैं सर day to day? एब्सोल्युटली. सो बेसिकली डैशबोर्ड जो है वो आपको नंबर और परफॉर्मेंस दिखाता है, पर वेयर हाउस आपको रियलिटी दिखाता है. सो एक्सेल शीट जो है बेसिकली इट गिव्स अ परफॉर्मेंस, पर शॉप फ्लोर जो है वो आपको कैरेक्टर दिखाता है. सो यू शुड गो टू द शॉप फ्लोर. दैट इज़ वन ऑफ अ मैंडेटरी थिंग यू शुड फॉलो. शॉप फ्लोर पे आपको जाके चीज़ें ग्राउंड रियलिटी पता लगती है. देन यू वुड बी एबल टू टेक अ बेटर डिसीजन लेटर ऑन. सो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमने ऐसा रूल बनाया है विद इन अवर डिपार्टमेंट कि यू गो टू द शॉप फ्लोर, यू स्पेंड टाइम, सिग्निफिकेंट टाइम, यू लर्न फ्रॉम देयर एंड देन यू कम बैक. तब हमको बहुत सारी चीज़ें उनको समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें जो लॉजिकल वे में कैसे फ़्लो होना चाहिए, आपने अगर ग्राउंड देखा ही नहीं है और आप एक तरह से डिमांड करते रहोगे विच इज़ वेरी रिलेवेंट, आप उसके लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो. तो आपको अनलेस यू गो टू द शॉप फ्लोर एंड सी द थिंग्स बाय योर सेल्फ, यू कैन नॉट लर्न. सो यू शुड गो. दिस इज़ वन ऑफ द primary leadership skill you should develop. You should go to the shop floor, you should learn from them, and then you come back to your place, and then you try to continue with your things. Yes, sir. And very interesting part what you said is कि वो warehouse या shop floor जो है वो character दिखाता है. Very very interesting line, sir. So मतलब सर मैं एक जानना चाहूँगा, सर character means what to you, as in and in your experience, sir, what character you would have seen various maybe 2-3 warehouses, or 2,000 warehouses maybe. So character, but yeah. what's the character, sir, which Yeah, you so are referring to, character, sir? yeah, so character I mean to say कि जो आप परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पे देख रहे हैं उसके पीछे किस तरह की मेहनत की गई है, क्या डिसिप्लिन हुआ है, और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. सो यू वुड एबल टू सी द पार्ट कि वहाँ पे कैसा हो रहा है. अगर आपका मैसअप ऑपरेशन है तो आपको कभी भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिलेगा. देन यू वुड नॉट बी एबल टू टेक अ डिसीजन ऑन दैट. सो आपका अगर बहुत सॉर्टेड ऑपरेशन है, वेयर हाउस शॉप फ्लोर पे आप देखते हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि चीज़ें किस तरह से फ्लो होती हैं, और किसी चीज़ में अगर आपको मिनिमम टाइम लगता है तो देना ही पड़ेगा. एंड सर एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हेन यू टुक मोर इनिशिएटिव्स ऑन विजिबिलिटी ऑन द नेटवर्क साइड ऑफ थिंग्स एंड ऑल, what were your couple of learnings which were there on the ground, जिसको आपने when you were looking for a technology platform आपने अप्लाई किया to see that कि ground जो है और जो टेक्नोलॉजी जो देने वाला है, इन दोनों के बीच में there has to be a sync, they should not be far apart, as in one or two examples of that, sir. Yeah, so basically I could remember सबसे पहले तो पेपर पे जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके बिजनेस मॉडल को सूट करे. इफ़ द सिस्टम इज़ राइट, दैट डजंट मीन दैट सिस्टम इज़ सुटेबल टू यू. सो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमने TMS डिप्लॉय किया. वहाँ पे हमने ऑटो इंडेंटिंग का एक मॉड्यूल डिप्लॉय किया. सो एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट ऑन द पेपर. सारा कुछ लॉजिकल उसने बनाया सिस्टम ने, और हमने वो मॉडल ऑटो इंडेंटिंग का डिप्लॉय किया. पर ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी कुछ चीज़ें डिफरेंट हो रही थी जो वो कैप्चर नहीं कर पाया सिस्टम पे. और हर बार हमको चैलेंजेस फेस आने लगे. व्हेन एवर वी रन द सिस्टम हमको डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस फेस आने लगे, और हमको फिर मैनुअल मोड पे ही जाना पड़ा. देन वी हैव कम बैक टू द प्रोसेस. हमने देखा और हमको समझ में आया कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैज़ नॉट कैप्चर्ड बाय द सिस्टम एक्चुअली. सो वी हैव करेक्टेड अवर सेल्फ, वी हैव करेक्टेड द प्रोसेस. हमने दोनों चीज़ों से, हमारा जो मैनुअल प्रोसेस था और जो सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस था, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने एक नया सिस्टम बनाया और उसका हमने POC किया. देन वी फाइनली एबल टू डिप्लॉय द कंप्लीट सिस्टम विच वाज अ ग्रेट सक्सेस एक्चुअली. Superb, sir, superb. And this is where, sir, what I was saying, that the ability to question our own deployment, as in sir ये भी एक बहुत बड़ा resistance है सर इंडस्ट्री में. I'll be very candid, sir, कि ऐसा होता है कि मैंने अगर डिसीजन ले लिया है तो मतलब इट इज़ लाइक कि मैं आई एम राइट एंड आई कैन नॉट गो बैक ऑन दिस. वेयर एज वेरी राइटली पॉइंट आउट कि हमने इंट्रोस्पेक्ट किया और उसको मे बी फीडबैक लूप में लिया, चेंज किया, एंड
या सो चैलेंज योर सेल्फ की जो एबिलिटी है ये आपको शॉप फ्लोर पे जाके ही पता लगती है राइट कि आप अपनी सीट पे राजा हो, पर जब आप शॉप फ्लोर पे जाके देखते हो कि आप यू आर नथिंग, क्योंकि जब पीछे पीपल जो जिस तरह के एफर्ट डाल रहे हैं वहाँ पे, किस तरह का सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ है, Right. कैसे चीज़ें डिसिप्लिन्ड वे में इतना बड़ा मैसिव ऑपरेशन चल रहा है, तब देन यू रियलाइज कि यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दोज ऑपरेशंस एक्चुअली। तब आपको यू कैन चैलेंज योर सेल्फ कि नहीं यार ये चीज़ गलत भी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने बोला है तो ये सही होगा। सही होगा। Yeah. नो वेरी वेरी राइट सर। एंड ये टाइप का सर एटीट्यूड बहुत कम देखने को मिलता है सर, दैट इज़ दी चैलेंज। बिकॉज आजकल आप इवेंट्स में जाइए, कॉन्फ्रेंसेज में जाइए, सो इट लुक्स लाइक दैट वी आर ऑलरेडी देयर Yes. and there is nothing which needs to be done. Yeah. But I'm sure that there's a long way to go. And sir, here I would like to also just extend this a little bit and say that for the first time, sir, I heard when you came up with the concept and the vision that we should have something like kind of a B2B commerce, which should have a Amazon kind of visibility baked into this. ये कैसे आया सर idea? Why this idea came and how you thought about it? And Yeah, so visibility is always important. आज के Correct. बहुत relevant है आज के कस्टमर, जब लोगों की कस्टमर की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ चुकी है, तो एज वी डिस्कस कि हर चीज़ में उनको विजिबिलिटी और प्रॉम्प्ट रिप्लाई चाहिए होता है. So in our whole system, we have observed that track and trace is a very weak point for us, or it is a demand of a time, और उसको कैसे improve किया जाए. So that's how this thought erupts basically, और there are multiple solutions available in the market for that. और हमने कुछ ट्राई भी किए, बट इट डिडंट फिट टू आवर बिजनेस मॉडल. सो वी हैव अ टू लेग्स लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी में तो इट्स मोर लाइक अ सिंपल काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी, GPS एंड ऑल डैशबोर्ड इज़ देयर. सो वी हैव पुट इन दैट. और उसके लिए, और चूंकि प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली इट्स ओनली अ स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिजस्टोन टू ब्रिजस्टोन. controlled by या us, right? सो बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स को आपको किस तरह का विजिबिलिटी देता है. तो देन वी फाइनली केम विद अ यूनिक काइंड ऑफ अ सोल्यूशन विद फ्रेटफॉक्स एंड विद यू पीपल, in which there's which is an industry benchmark, and this is a unique solution in its way कि secondary transportation का visibility, when there is a multiple transporter partners are involved, multiple vehicle in a single go, multiple vehicle and transshipment is involved, all kind of visibility is available to the customer. Absolutely. So this is what we have bring in with the help of technology and with the help of our experience. So Absolutely. That is why I said that this is basically when the ground and the technology forces come together. That's the kind of difference we can get in. When we meet a lot of people, logistics is a very different animal. As in, when I say animal, it's a very different characteristics actually compared to the other products and services. From your experience, because you have seen procurement also, you have seen the categories also, and now at this juncture you are leading the logistics as a domain. What's the key difference between logistics and other products and services? Or how it differentiates, as in Sure. how it keeps the phone ringing and keeps us awake for a longer time. So logistics की सबसे यूनिक बात है कि इट्स अ लिविंग ऑपरेशन बेसिकली. Very एवरी डे इज़ अ यूनिक डे, एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर यू. सो आपको पता नहीं है कब क्या होगा. आपकी गाड़ी जा रही है, पर वेदर इशू है, ट्रैफिक जैम है, गाड़ी ब्रेक डाउन है, ड्राइवर का कुछ इशू है. सो दैट काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी यू हैव टू हैंडल विद इट, एंड यू हैव टू रन द शो, और आपको वो आपके कमिटमेंट पूरे करना है. सो दिस काइंड ऑफ डायनेमिक थिंग्स मेक्स द लॉजिस्टिक्स यूनिक इन इट्स वे, वेर इन अदर कैटेगरीज जनरली ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी ईजी होती है या बहुत स्मूथ होती है. पर लॉजिस्टिक्स में यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग, और यू डो नॉट नो कि व्हाट विल हैपन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड. दैट कम्स ओनली फ्रॉम द एक्सपीरियंस बेसिकली. It will not be teach by PowerPoint or any presentation. जो आपका एक्सपीरियंस किया है आपने, तो आप वहीं से आपको ये सीखने मिलता है कि उस रिस्क की सिचुएशन में आपको क्या जजमेंट लेना चाहिए. एंड दैट्स हाउ लॉजिस्टिक्स बिकम वेरी यूनिक थिंग इन इट्स वे. So one of the very important point which you said is it's a living organism, and living, you said living operation, but I am saying living organism actually. जिसका behavior that also has a character. So when it comes to now, sir, if we look at the linking pin or the pillars of the logistic operation, and
I'm sure it is more outside in impactful operation in terms of the partners you are working with. For example, the transport partners and the transport partners' dependency on drivers ultimately, who are the ultimate linking pin into this overall chain. In your experience, how have you found, and there are a lot of data technologies and other things we talk about, but how in your experience you ensure that when you talk to a logistic partner or transportation service provider, that the company will be able to cater to the my challenges which is there? How do you read that, sir? And what are some of the I would say some of the essence which we pick up from the conversations or from the understanding, and it makes us confident that okay, this is the right kind of company or right kind of partner to work with? So basically experience आपको छोटे छोटे indicators देता है कि whether the transport partner or any other vendor partner is reliable or not. They are responding to you. They are open enough to discuss their problems with you, whatever the problem they are facing, and they are responding timely with you. And of course, पास्ट एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स. सो ये इंडिकेटर्स आपको देते हैं, सेंसिंग देते हैं कि वेदर यू कैन रिलाई ऑन द ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स और नॉट. एंड डेफिनेटली व्हेन यू ट्रस्ट दैम एंड व्हेन यू अलॉट अ बिजनेस टू दैम एंड म्यूचुअली उनके बिहेवियर से आपको धीरे धीरे पता लगता है कि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या इट्स ओनली अ ट्रांजैक्शनल पार्टनर. सो दैट्स हाउ यू लर्न ड्यूरिंग द प्रोसेस. During the process, okay. And sir, इसमें one of the important thing I just wanted to extend to is कि let's say इंडिया में जैसे सर हम जब अलग अलग कंपनीज के साथ काम करते हैं तो एवरीबडी वांट्स टू नो दैट इफ पीपल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल सर एक एक्सपेक्टेशन आता है जिसमें सब बोलते हैं कि इस ट्रांसपोर्ट पार्टनर का रेटिंग क्या है. वो बोलते हैं कि आप तो बहुत लोगों के साथ काम कर रहे हो तो इसका रेटिंग क्या है. एंड वी ट्राई टू टेल देम दैट ट्रांसपोर्टर का बिहेवियर आपके साथ इज़ अ रेसिप्रोकेटिंग बिहेवियर, राइट? सो if you are a company which converts trucks into a warehouse at the month end wherein there are long detentions which are there, आपके लिए ट्रांसपोर्टर का परसेप्शन वर्सेस एक कंपनी जिसका पेमेंट स्मूथ है, जिसका सब कुछ टाइम पे होता है, डिटेंशंस आर वेरी वेरी एज इन कंट्रोल, और वो ट्रांसपेरेंसी है उसके इस कंपनी के साथ. सो इसका रेटिंग आपके साथ और इसका रेटिंग आपके साथ दोनों एक नहीं हो सकता. सो इंडिया में जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ट्रांसपोर्टर का एक रेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कभी बन भी सकता है सर? बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन उसको अलग तरीके से ट्रीट करती है. एज इन सेम ट्रांसपोर्टर विल गेट ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली. कहीं पे उसको पेमेंट 3 हफ्ते में मिल जाती है, कहीं पे उसको 4 महीने में भी नहीं मिलती है और 5 महीने में फॉलोअप करना पड़ता है. सो ऐसे में सर हम रेटिंग सिस्टम बना भी पाएंगे इंडिया का कभी? ऐसा कुछ हो भी सकता है पॉसिबल सर? डेफिनेटली होगा, पर देखिए जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये म्यूचुअल ट्रस्ट पे डिपेंड करता है. एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात जब आप करते हैं तो आपको दोनों पार्टी को एक दूसरे के ट्रस्ट को प्रूफ करना होता है. रेटिंग सिस्टम कैनॉट बी वन साइडेड एक्चुअली. करेक्ट. बोथ फेज रेटिंग सिस्टम इज देयर. करेक्ट. आप कस्टमर हो, आप किंग हो, इट्स नॉट रिलेवेंट इन करंट स्पेस एक्चुअली, करंट एरा. इट्स लाइक आप उनसे सर्विस ले रहे हो, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आपके लिए उनकी इंपॉर्टेंस और उनके लिए आपकी इंपॉर्टेंस बराबर की है. बराबर. सो जब आप किसी ट्रांसपोर्टर को रेट करते हैं तो ट्रांसपोर्टर भी आपको रेट करता है. मे बी वो अनऑफिशियल हो, इनफॉर्मली हो, बट दे ऑल्सो डू रेट कस्टमर्स एज वेल कि आपका पेमेंट टर्म उनके भी सेट क्राइटेरिया है. करेक्ट. So in our company, we have a pool of around 40-45 transporters, and more than 70% transporters are associated with us from last 20-22 years. Wow, So superb. long time. Superb. So we have a practice in our organization. We do ask our transporter कि where we stand in list of your customer. Amazing sir. और वो बताते हैं कि सर, और हम उनसे पूछते हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट पॉइंट चाहिए, एंड दैट्स हाउ वी करेक्टेड अवर सेल्फ. तो ये जो रिलेवेंस है या ये जो इस तरह का माइंडसेट है, ये इंडस्ट्री में आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा. आज नहीं कर रहे हो, आपको 5 साल बाद करना पड़ेगा, बट यू नीड टू गिव अ इक्वल इंपॉर्टेंस टू द ट्रांसपोर्ट पार्टनर एंड ऑल योर वेंडर्स एज वेल. Then how you can make a win-win situation, and then how you can run a very sustainable or long-lasting business. Very very well said sir. And because sir ये बहुत ही मेरे it comes from my personal experience also that all the vendors, whenever we are taking a newer initiative and all the vendors partners get seat on the table when we are discussing, but I have very rarely seen, or I would say I have not seen
that we are also including transport or logistics service providers also on the table while we are conceptualizing the project. Correct. लॉजिस्टिक्स सर मेरे को अभी तक ऐसा लगा है कि व्हेन द एंटायर सो द प्रोडक्ट ऑर्डर इज देयर, आई हैव मैन्युफैक्चर्ड इट, एवरीथिंग हैज हैपेंड इन द पीस, but now I want to deliver it fast. Yeah. So the entire inefficiency is actually the constraint gets shifted to logistics ultimately. As we say, sir, keep saying that कि अगर ये नहीं गया material तो loss of sale होगा. Yeah. But we don't say same thing to manufacturing. We don't say same thing to the upstream functions because there it is going on. See, ultimately, why the month-end skewness comes, why the inconsistency comes is because of this. And sir, यहाँ पे the transport partners are supporting because of the relationship, because I know in India we still are far away from giving. Here, sir, one more very important point is that all the organizations spend so much money on the demand forecast, right, sir? Demand forecast में बहुत technology, बहुत कुछ लगता है. But I have not seen, and sir, correct me again if I'm wrong, that I have not seen any organization so far which is giving equal importance to transport capacity forecasting also. Because material आपने demand forecast कर लिया, बना लिया, जाएगा कैसे और टाइम पे पहुंचेगा कैसे? सो आई डोंट नो सर, ये गैप क्यों रह जाता है सर? वाई ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट टेकन सो सीरियसली लाइक वी टेक डिमांड फोरकास्टिंग? बिकॉज इट्स द अल्टीमेट लिंकिंग पिन. इफ दिस गोज रॉन्ग देन एवरीथिंग एल्स डजंट मैटर अल्टीमेटली. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आज के स्पेस में अगर आपको रिलेवेंट रहना है, सो यू नीड टू गिव अ इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द एसोसिएट पार्टनर्स, बी इट अ ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस ओनर और योर लेबर फोर्स और योर सेल्फ, योर टीम. सो बेसिकली माइंडसेट ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है. लाइक वी लर्न ऑल्सो फ्रॉम many other companies like Asian Paints, they do have a very strong system. So मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस को हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की है. सो वहाँ से हमने ये देखा कि ट्रांसपोर्टर के लिए आपकी रेटिंग क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. आप उसको पूछते हैं और देन यू ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन योर सेल्फ और योर सिस्टम कि कहाँ पे उसको पेन होता है. सो दैट्स हाउ और ये धीरे धीरे मैंने देखा है इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही हैं. दे आर गिविंग अ इक्वल इम्पोर्टेंस. Nowadays, you see a transporter very learned, third or fourth generation has come up, correct, which is quite learned people. Yeah, tech savvy हैं. They also teach you many good things कि कैसे efficiency overall improve की जाए. नए नए systems वो लेके आते हैं. So it is equally important for you to give the importance, और उनको भी आप equal partner की तरह treat करेंगे तब जाके आप you can able to run a very sustainable long term win-win situation in business. Absolutely, sir. And sir, now zooming back a little, actually, in terms of in the professional journey, we keep on taking a lot of initiative. It is all about initiatives, and I know that you have been at the forefront of thinking that forward kind of thoughts. ऐसा कभी हुआ है सर कि you have thought about innovation, you have thought about a kind of a initiative जिसको बहुत रेजिस्टेंस मिला, एज इन एवरीबडी सेड दैट इट कांट हैपन, जो हो नहीं सकता, जो जैसे सर हमारे यहाँ पे एक वी हैव अ डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल हु स्टार्ट्स विद मैंने तो पहले ही कहा था. वो सब जगह होता है. सो करेक्ट. सो दैट एग्जिस्ट एक्चुअली. एंड विद द फियर ऑफ दोज पीपल, हैव यू कम अक्रॉस, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि इनोवेशन या इनिशिएटिव लिया जिसको बहुत पुशबैक मिला, but later it became it was well acknowledged. Yeah. So I could remember incidents कि हमने TMS में ELR एक अडॉप्ट किया था. काफ़ी टाइम हो गया अब तो उस बात को. सो इलेक्ट्रॉनिक LR. सो यूजुअली बैक ओल्ड डेज व्हाट हैपेंड कि आप डॉक्यूमेंट बना के, डिस्पैच टीम डॉक्यूमेंट बना के LR बॉय को हैंड ओवर कर देते. आपका टाइम और आपका सारा काम खत्म हो गया. अब LR बॉय आएगा 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद सारी कंपनी को कवर करके, ट्रांसपोर्टर का LR बॉय, और वो LR बनाएगा, आपको देगा, और उसके बाद बाकी का प्रोसेस व्हीकल गेट आउट होगी. दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस वी वर यूज्ड टू डू इन बैक डेज. सो अभी हमने जब बोला कि हम ELR लाना चाहते हैं, सो उसमें जो हमारा डिस्पैच टीम है, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस केम अप कि नहीं हमको सिस्टम में लॉगिन करना पड़ेगा, फिर हमारी गलती हो जाएगी, फिर इसमें कंपनी हमको बोलेगी, फिर ऐसा होगा वैसा होगा ना, तमाम सारी चीज़ें दिक्कत है की. पर विद अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वी ट्राई टू पुट इन द सिस्टम, न्यू सिस्टम. और उसमें बहुत टीथिंग ट्रबल्स आए हमको, क्योंकि पीपल वर क्वाइट रेजिस्टेंस टू अडॉप्ट दोज टेक्नोलॉजी. और धीरे धीरे सिस्टम में करेक्शन भी हुए और सिस्टम फाइनली अडॉप्ट हो गया सिस्टम में.
later on they were the most supporter of the this thing module change, yeah. ELR का और उन्होंने आगे जाके हमको इतना अप्रिशिएट किया और उनकी डिपेंडेंसी चूँकि ख़त्म हो गई है, इसमें डेटा विजिबिलिटी, डेटा एक्यूरेसी बढ़ गई है, कंपनी के एंड पे जो गलतियाँ होती थी, जो इनके माथे आती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और उन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट आगे जाके हमको इसमें उन्होंने बताया डिस्पैच टीम ने. Wow. So this is kind of a टेक्नोलॉजी पावर और चेंज ऑफ माइंडसेट कि कैसे चीज़ें इवॉल्व होती है और अपने आप आती है. सो व्हाट आई सी कि पीपल जनरली डोंट रेजिस्ट द प्रोसेस, पीपल रेजिस्ट द अनसर्टेनिटी. Right, sir. So let's come to fast forward to, sir, where we are today. And before I again get into that, how do you look at the future? Again, sir, you have witnessed the pen and paper, as you said, सुबह डायरी और पेन से शुरू होता था, and then to desktop computers जहाँ से हुआ, and then to mobile phones in hand, and अब WhatsApp से शुरुआत होती है, and then laptop पे everything is there. So कैसा रहा सर ये transition, as in how would you put this transition in perspective? कि तब क्या था, आज क्या, बीच में क्या रहा सर, और आज हम जब धीरे धीरे वी आर डेमोक्रेटाइजिंग इट वाया इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैपटॉप्स, एवरीथिंग. So how it has evolved, sir, in terms of especially procurements, logistics, supply chain, especially in those domains? Sure. So in my career, I have seen the paper era to the AI. So paper, usually we used to store the information in paper. पेपर्स पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी. फिर उसके बाद कंप्यूटर का ज़माना आया. कंप्यूटर में वो इन्फॉर्मेशन को डिजिटलाइज किया जाता था और उससे अलग अलग इन्फ्रेंस निकाले जाते थे डेटा पॉइंट को. फिर मोबाइल का ज़माना आया, इंटरनेट का ज़माना आया, जब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेज सकते थे आप और उस पर बात कर सकते थे. और उसके बाद अब ये AI का ज़माना आया है. तो AI इज़ नॉट ओनली रीडिंग द डेटा बट ट्राई टू इंटरप्रेट द डेटा, ट्राई टू understand the data and try to give a meaningful conclusion of the data. Right. So AI is a game changer now. और AI फिर भी मैं समझता हूँ कि ह्यूमन टच is also one of the key aspect of all the business scenario. So the future is combination of AI and a human intelligence. Correct. अगर इन दोनों का हम एक मॉडल तैयार करते हैं आगे जाके, सो वो ही फ्यूचर रहेगा और वो ही मोस्ट सक्सेसफुल रहेगा. सो आई शुड से दैट एक्सपीरियंस में नॉट ऑलवेज बीट AI, बट AI विदाउट एक्सपीरियंस can be dangerous. Absolutely, sir, and very again, sir, very well said point. Because AI again is a text, and sir, even what I am also observing and we are observing is that AI is now considered as a god kind of a thing, as it's a gospel of truth, or it is a database or something, whereas it is just a text generation engine. Ultimately, it predicts that, okay, what could be the next text, and without the wisdom and without the experience, I am sure the AI will not be able to make the impact which we are expecting right now. And that is where, sir, as you rightly said, that human and AI combination is important, sir. Can you give some examples, sir, where you feel that how human in loop or how human intelligence, और सर मैं इसको बोलता हूँ कई बार सर अपना इंटेलिजेंस, मतलब AI वो भी AI है सर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना इंटेलिजेंस, इनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं? व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर यू फील दैट लेट्स से पहले ये ऐसे होता था लेकिन अब विथ AI एंड ह्यूमन इट कैन इवॉल्व लाइक दिस? या सो मुझे लगता है कि जहाँ पे हाई लेवल ऑफ डेटा एनालिसिस की ज़रूरत होती है, वहाँ पे AI लेड ऑपरेशंस होने, AI लेड मॉडल होने चाहिए बेसिकली. सो व्हेन यू से डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट और एक्सेप्शनल मॉनिटरिंग, सो इसमें AI का आप बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं. पर कुछ मॉड्यूल आज भी ह्यूमन लेड होना चाहिए. मैंने इसे ह्यूमन लेड, सो इट्स लाइक रिलेशनशिप मैनेजमेंट और नेगोशिएशन स्किल और एथिकल मैनेजमेंट, तो ये ह्यूमन लेड ही होना चाहिए. सो एज यू सेड, एथिकल मैनेजमेंट और contextual wisdom which is there, or experience from the past or historical actions which are there. जब भी हम सर ये सब करते हैं बिल्कुल. सो एंड सर नाउ वी हैव द न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स हु आर ऑल्सो कमिंग इन इनटू हियर, न्यू जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर ऑल्सो कमिंग इन. Based on, sir, we had a long conversation on the years which you have seen and traveled. For the newer professionals which are now coming at an intersection where the processes are changing fast, the technology is disrupting the things, and then there is a aspiration of organizations to do things with lesser and lesser, more and more. So if the expectation is of productivity, efficiency is very. What would you advise to some of the younger generations who are now entering into the logistics supply chain, fresh out of the college, or they are
starting with 2-3 years of experience, 5 years experience, what could be few things you can share with them so that they also carve out their path for the next 20 years as we go from here? So, in my experience, basis my experience, I would say few things like never stop learning. So आज जो आपका knowledge valuable है, हो सकता है 5 साल वो relevant ही ना हो. So only learning can make you the safer path. So never stop learning. Build relationship before you require them. This is second point. कि जब आपकी इमरजेंसी या क्राइसिस होता है तब आपको कांटेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स काम नहीं आते हैं, तब आपको आपके रिलेशनशिप ही काम में आते हैं. तीसरा चीज़ होता है ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है. So unless you go to the shop floor, unless you go to the vendor location, unless you go to the transporter operation, you would never be able to take a better decision. Right. And the fourth thing is integrity is non-negotiable. So skill आपको success दिलवाता है, but credibility आपको respect दिलवाता है. So integrity is always non-negotiable, and you should not compromise on that. Very interesting point of the contract and contacts. Because sir, we say that if you have to go back to the closet and see the contract or go to Almira and pull out a contract, that means the relationship is already lost. Yeah. That's how we say it. And sir, before I come to the closure of this, from your lens, sir, how do you see what would, with the AI, with the everything, how would 2050, just imagining it and from the vision of it, that how would 2050 look like for logistics and supply chain as we get into the era which is now getting dominated by the technology? Yeah, so I could see 2015, everything will be automated, warehouse ऑटोमेटेड रहेंगे, ऑपरेशन ऑटोमेटेड रहेगा, डिमांड फोरकास्टिंग एआई कर देगा, रिप्लेनिशमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा. सारा कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम से मैं समझ पा रहा हूँ और बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम हो जाएगा. पर एक चीज़ जो आज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और 2015 में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगी इज़ अ इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल. सो बिजनेस इज़ ऑलवेज वर्क ऑन अ ट्रस्ट. आज भी बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है, 2015 में भी बिजनेस ट्रस्ट पे ही चलता है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत ही रिलेवेंट है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट द थिंग्स विल डेफिनेटली व्हाट वी आर सीइंग टुडे विल बी फार डिफरेंट स्टोरी फ्रॉम टुडे टू 2050. या Absolutely, sir. And with that, I really appreciate you taking out time and explaining right from the nooks and corner of your last 2.5 decades of experience. It has been amazing having a conversation with you, and probably we would deep dive into some of these aspects specifically in upcoming episodes as well. I thank you for this opportunity. Thank you so much.